आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के 60 नए मामले दर्ज हुए हैं। फिल वक्त आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1463 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामला करनूल में दर्ज हुआ है। अब तक 33 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 7,902 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। गुजरात में फंसे आंध्र प्रदेश के मछुआरे आबाई मकाम पहुंच गए। रियासती हुकूमत ने मछुआरों की वापसी के लिए हुकूमत गुजरात से दरखास्त की थी, जिसके बाद इन मछुआरों को 12 बसों के जरिए विजयवाड़ा लाया गया। रुकन असेंबली और एसपी विजयवाड़ा पहुंचे वाले मछुआरों का उन्होंने इस्तकबाल किया और उनकी तिब्बी जांच के बाद उन्हें आबाई मकाम के लिए रवाना किया जाएगा। रुकन असेंबली ने बताया कि श्रीकाकुलम के 700, विजयनगरम के 98 और विशाखापट्टनम के 77 मछुआरे आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन में फंसे अफराद को उनके आबाई मकाम मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళీ తిరిగి సముద్ర మార్గం ద్వారా పంపించాలంటే టెక్నికల్ గా వీలు కాకపోతే వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన మీద వాళ్ళందరినీ కూడా స్వస్థలాలకు చేర్చాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించుకొని వారితో ప్రభుత్వ అధికారులను కూడా మాట్లాడి మరి సుమారుగా వీళ్ళంతా కూడా 4,385 మంది ఉన్నారు మొత్తం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో. ఈ 4,385 మందికి 58 బస్సుల్ని పంపించడం జరిగింది. 58 బస్సుల్లో ఆంధ్ర బోర్డర్కి మరి జగ్గేపేట ప్రాంతానికి గరిగిపాడు చెక్ పోస్ట్ వద్దకి ఇప్పుడు ఉదయం 6 గంటలకు రావడం జరిగింది. Warriors of the country. प्रिंस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। I see no ladies here today, but nonetheless, ladies and gentlemen, तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं तीनों अफवाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस We are here today. देखना होगा कि तीनों अफवाज की जानिब से क्या कुछ as you all know, the entire world is fighting the menace of the coronavirus. And like everybody else, our nation too has been affected. On behalf of the defense services, we have decided to express our gratitude to all the corona warriors, every person who has been involved in providing support to our nation and to its people, in ensuring that all of us remain safe and we are able to overcome this problem in the days ahead. We have seen the manner in which the medical professionals have toiled day in and day out to ensure that all those affected by this virus recover in the fastest time frame. Along with them, the nurses, the other people from the medical profession, sanitation workers, our police personnel, standing beside them, personnel from the home guards, delivery boys who have been delivering essential commodities in the homes of the people. And of course, we cannot forget the media which has been reaching out to our population with the message that has emanated from our government from time to time on how to carry on with our life during these difficult times. We are indeed very grateful to all the corona warriors who have ensured that we are going past this phase
in a very deliberate manner. We also cannot forget the people of our nation who have very strictly adhered to all the guidelines that were issued by the government from time to time, whether it was on social distancing, wearing of masks, ensuring proper hygiene and sanitation at all times. And of course, when the government gave the call, whether it was through the ringing of bells or through lighting our houses at night, the nation stood together. I mean, our nation has shown the resilience to overcome such crisis by staying together. And as you can see, the motto that is written behind, frontline warriors today salute the corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the corona warriors. And in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypasts will be conducted by fixed wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals, in particular the COVID hospitals, not just in the state capital of Delhi, but in almost every district of our country. With this, to express our strength that we stand by our police forces, the armed forces will also be laying wreaths at the police memorial on the morning of 3rd of May. तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे थे जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे और इस सरबराहान ने मुश्तरका तौर पर फैसला लिया है कि कोरोना के वॉरियर्स है उनकी हौसला अफजाई के लिए अलग अलग तरीके से उनके साथ इजहार यकजहती की जाएगी और ये पूरी मुल्क देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, इस तरह आके इजहार ख्याल किए गए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं खबर विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा में मई डे तकरीब मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खुसूसी ख्याल रखा गया। CPM के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने पार्टी दफ्तर में परचम
लहराया। इस दौरान उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है। अरबपति अफराद मुल्क के करोड़ों रुपए लेकर बैरून मुल्क भाग गए। मरकजी हुकूमत उन अफराद का कर्ज माफ कर देती है, जबकि गरीब लोगों को जीने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। करनूल सीपीएम दफ्तर में मई डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली एमएलए गफूर ने सीपीएम दफ्तर में परचम लहराया। इस दौरान उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने में कुछ हद तक नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूर तबके को नजरअंदाज कर रही है। इस दौरान सीपीएम लीडर एमए गफूर ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी पर भी तनकीद की। वहीं विजयवाड़ा में पोस्टल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पोस्टल मुलाजमीन ने एक रोजा धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मरकज ने 6 माह का डीए ना देने का ऐलान किया है। वो मरकज के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने फौरन डीए फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत मुलाजमीन के हुकूक को खत्म करने की पॉलिसी अपना रही है, जिसके सबब लाखों मुलाजमीन का नुकसान होगा। जगन हुकूमत ने छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बीड़ा उठाया है। इस सिलसिले में छोटी सनतों की करोड़ों रुपए की बरक़ी बिल माफ़ की गई है। उन्होंने बिला सूदी कर्ज जारी कर दिया है। रियासती वज़ीर एम गौतम रेड्डी ने ये बात कही। మొదటిసారి మన దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్ కి ఇంత అంటే ఒక బెనిఫిటే కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన రాబోయే రోజుల్లో కావాల్సిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నీడ్స్ కూడా ఆలోచించిన నాకు తెలిసి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పనిసరిగా హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ఛాంపియనింగ్ దిస్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆల్సో అని అనిపిస్తుంది. అందుకే మళ్ళా కూడా మా ఇండస్ట్రీస్ తరఫున మా ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫునగా అలాగే మా ఇండస్ట్రీస్ తరఫునగా మళ్ళీ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. सीपीएम लीडर बाबूराव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गरीब आवाम बेरोजगारी से परेशान हैं, इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है, जबकि करोड़ों का कर्ज लेने वाले लोन डिफॉल्टर्स का कर्ज माफ किया जा रहा है। Again, Modi government attitude was exposed. 68,000 crores of rupees bank defaulters was waived by the central government. It is a fraud on the Indian people. These people, they are the looters of the banks, they are defaulters of the banks. The Nirav Modi, Vijay Mallya and Choksi, those are the friends of the Narendra Modi and BJP. It is the responsibility of the Modi government. But how the crores of rupees was waived by the central government? What about the black money? At the time of 2014, Narendra Modi assured the Indian people within the 100 days, lakhs of crores of rupees was in foreign banks. They will get the money. What happened? There is no announcement. The names was not disclosed by the central government. It is the इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी की खबर है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। पहले ही लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस बीच बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जैसा पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लॉकडाउन में तौसी की जाए, इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। वज़ारत दाखिला और सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी की गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में अब मुश्किलात बढ़ती हुई जा रही कोरोना वायरस की वजह से, और सबसे अहम और इजी जो रास्ता है वो लॉकडाउन ही है इस वबा पर काबू पाने के लिए। इसलिए मरकजी हुकूमत लगातार इक़दाम करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत इसी कड़ी में एक बार फिर से लॉकडाउन में इजाफे की खबर है। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की मजीद तौसी की गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
जैसा कि पहले ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि लॉकडाउन में तौसी कर दी जाए, अब इस खबर पर मुहर लग गई है कि अब लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया है, यानी लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी की गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मरकजी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि इस वबा से लड़ा जा सके, और इसीलिए सबसे जो अहम रास्ता है वो लॉकडाउन ही माना जा रहा है। यानी लॉकडाउन एक हथियार है इस मुहलिक वबा पर काबू पाने का, इसीलिए मरकजी सरकार लगातार लॉकडाउन में इजाफा कर रही है। इस बीच अब खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते की और तौसी कर दी गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर आवाम के अंदर तजब्जुब था कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर किसी तरह की शर्तें होंगी, लॉकडाउन का अख्ताम होगा। तो इस वक्त की खबर ये बता रही है कि अब लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में तौसी करने के साथ क्या मरकजी सरकार मजीद छूट देने वाली है या नहीं, ये आगे हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कई शर्तों के साथ कुछ इलाकों में और साथ ही साथ किसी शोबे में छूट मिलती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। उधर कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि तीनों अफवाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वॉरियर्स के हौसले की सताइश की गई और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से फ्रंट लाइन पर आकर इस मुहलिक वबा से लड़ रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इसीलिए तीनों अफवाज मिलकर उनके साथ इजहार यगानगत करेंगे। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से दी गई कि किस तरह से उनके लिए उनकी सताइश करते हुए कोरोना वॉरियर्स की क्या कुछ फिजाई, साथ ही साथ नेवी और आर्मी क्या करेगी, ये भी बताया गया। तो लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी की खबर है। 4 मई के बाद 2 हफ्ते की तौसी होगी। लॉकडाउन को लेकर अलग अलग तरह के सवाल किए जा रहे थे कि क्या जो लॉकडाउन चल रहा है क्या उसमें तौसी होगी या नहीं होगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उन तमाम सवालों के जवाब ये खबर दे रही है कि अब लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। मरकजी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला, लगातार तमाम माहिरीन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर इस मुहलिक वबा पर काबू पाना है तो लॉकडाउन बढ़ाना होगा। ऐसे में मरकजी सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है कि मुहलिक वबा से लड़ने के लिए और इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली